The French system of training is not theoretical. The École Nationale d'Administration impart training to the French civil servant. First answer B. France the training attached to an industrial establishment. Second answer जगह B 2 month. The compared British civil service. Which of the following is the salient feature of the French civil service? थर्ड का आ जाएगा B 1 3 and 4. डेमोक्रेटाइजेशन नहीं आएगा, एग्जिस्टेंस आएगा. सुपरलाइट का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है एंड लिबरल पॉलिटिकल राइट्स है. द फ्रेंच सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्मिटी एंड फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रलाइजेशन. फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए. पोक बैरल लॉगिंग आर द करेक्टराइज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. कहाँ पर है ये? दैट इज सी यूएसए में. फीचर ऑफ बजटरी सिस्टम इज ब्रिटेन. 6 का आ जाएगा बी 1 and 2. It is single budget. Budget is neither introduced nor discussed. The budget speech is made by the chancellor or before budget laid to the table. That's not true. Budget is presented to the Queen 22 day after it is passed by the lower house. That's not true. Following are true. 7th का आंसर जगह D. The function of the French École Nationale d'Administration are equivalent to the LBS and UPSC in India. That is true about the function British Treasury. Indian Finance Ministry equal नहीं है. Function of British Treasury American office are not equal, and the function of British civil service and American is also not equal. Administrative group formed किया गया था ब्रिटेन में. That was D 1971 में. British Treasury was divided finance and economic side and pay and management. 9th का आंसर डी प्लॉडन कमेटी. विच इज फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच. तो 10th का आंसर जगह सी टाफ्ट हार्टली एक्ट 1948 में नहीं आया था. पेडल्टन 83 में, हेज 39 में, लॉर्ड फॉलेट एक्ट 1912 में. 11th का आंसर आ जाएगा डी मास्टरमाइंड कमेटीज फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटी. प्लॉडन कमेटी जो था वो आया था कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. वाइट कमेटी जो था पार्लियामेंट्री कमिश्नर. एंड द सेकेंड हुअर कमीशन जो था सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस. US civil service is the complex and the federal civil service is grouped into the 18 general service. 12th का आंसर आ जाएगा that will be the A. 13th का आंसर राम से मुर है. 13th का आंसर आ जाएगा C. C का मतलब द इन आवर सिस्टम गवर्नमेंट द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज नॉर्मस स्ट्रॉन्ग. राम से मुर ने कहा था. एंड द लास्ट की द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन द बेस हैंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी जियोपार्डाइज द लिबरल ऑर्डरली सिटीजन. Lord Hayward characterized the phenomena of the concentration of the power hands of the bureaucracy, and he thought such as phenomena would endanger the liability of the people. 14th answer A. Which is the following advantage of the position classification? 15th answer आ जाएगा A 2 and 3. It provide the high degree of specialization. It put an end to that discrimination. It promote the mobility. That's not true. Attached to the competent personnel. That's not true. Which is the following advantage of the direct recruitment? 16 का आंसर जगह भी 1 2 and 4. It lead to the stagnation in the public service. That's not true. Direct recruitment. Consonance होता है wider source of supply capable qualified people. Which is following are the special qualification for the employee. 17th का आंसर आ जाएगा that will be the A. That is residence education. रेसिडेंस नहीं आएगा. एजुकेशन एज एंड एक्सपीरियंसेस भी नहीं आएगा. पर्सनल आएगा. मैच द फॉलोइंग है. 18th का आंसर आ जाएगा सी. It is imparted by the senior official. That was the departmental training. It is imparted to the employee various department. That was central training. Mean for the instruction specialized technique. That was from the skill training. Mean for the broadening the training in the mind, helping to the understand various aspect of the job. माँ कुछ ही गन करनी है. 18th का आंसर आ जाएगा that will be the C. That is 3. That is the background training. Now 19th का आंसर आ जाएगा B. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1958 में बनाया गया था. प्रमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडवांसमेंट. प्रमोशन इन्वॉल्व चेंज ऑफ ड्यूटी एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. 20 का ये आ जाएगा. विच इज़ फॉलोइंग आर सर्विस कंडीशंस. 21 का आंसर आ जाएगा सी. कंपनसेशन लीव ट्रांसफ़र डिप्यूटेशन एंड सुपर एनुएशन पेंशन. 22 का आंसर आ जाएगा सी. थर्ड पे कमीशन है रघुवीर दयाल का. न्यूट्रलिटी इन पब्लिक सर्विस एंड टू द मॉरल करप्शन. 23 का आंसर हो जाएगा सी. ब्रेन चैपमैन ने दिया था. विच इज फॉलोइंग प्रिंसिपल मीन दैट सिविल सर्वेंट शुड बी मॉडली एडवाइस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ब्रांड द कार्टेल. 24 का आंसर हो जाएगा डी. दैट इज एनोनिमिटी इज देयर. विच इज फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैग. 25 का आंसर हो जाएगा डी. दैट इज इम्बैलेंस बिटवीन द नीड्स टू मेट एंड द एडुकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव. नेक्स्ट वन इज विच इज़ फॉलोइंग पे आर कलेक्टली मैच्ड. तो 26 का आंसर आ जाएगा बी. LD वाइट पब्लिक एडमिन हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मॉडर्न गवर्नमेंट एंड ऑर्डर टी जो है उसने कहा था एडमिन इज ए मॉरल एक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉरल एजेंट.
एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडन टर्म एंड मैनेजमेंट वर्क विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क लेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। 27 का आंसर हो जाएगा ए। Who is the following thinker have taken the definition of public administration? 28 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज वुड्रो विल्सन, पिफनर, मार्शल डिमॉक एंड एल डी वाइट। हर्बर्ट साइमन नहीं आएगा। वॉचडॉग वर्ड फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 29 का आंसर आ जाएगा अगेन सी, दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। द मीनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग जो है दैट वाज द हैमिल्टन। लिटरेचर ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 31 का आंसर आ जाएगा सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। decrying the human being sacrifices to the logic of machine and system is not there. Which is following is a true public choice approach? 32 is B. इट केम टू एग्जिस्टेंस। 60 में प्लूरलिज्म था, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिजेक्टेड दिस ऑल्सो। विच इज़ फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिक्स आर द फीचर ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो 33 का आ जाएगा ए, 2, 4 एंड 5। अटेनमेंट, पार्टिकुलरिज्म नहीं आएगा, पॉलीफंक्शनलिज्म एंड सेलेक्टिविज्म आएगा। फंक्शनल डिफ्यूज भी नहीं आएगा, पार्टिकुलर भी नहीं आएगा। 34 का आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द डी। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ड्रकर का था, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एप्पलबी का था, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीड का है, एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैडन का है। According to normative model of the leadership, which of the following variable affects the performance of leader? तो 35 का आंसर आ जाएगा बी। 1, 3 एंड 4 आएगा। प्रैक्टिस ऑफ द सबॉर्डिनेट नहीं करते हैं, क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड। विच इज़ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड? तो 36 का आ जाएगा पाथ कोल थ्योरी जो है मार्टिन इवांस एंड रॉबर्ट हाउस की थी। 37 का आंसर है डी। डी का मतलब है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो दी थी वो स्किनर ने दी थी, एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो दी थी विक्टर ब्रूम ने दी थी, इक्विटी थ्योरी जो दी थी स्टानले एडम्स ने दी थी, और परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन थ्योरी जो दी थी वो दी थी पोर्टर एंड लॉरर ने। और 37 का डी हो गया। 38 का आ जाएगा सी। विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू? मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इट इज़ फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी, इट वॉज propounded by 1944, दैट्स नॉट ट्रू, एंड इट व्यूज द हायरार्की नीड्स आर वाटर लाइट भी नहीं है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोपिटेंसी ऑफ द नीड्स। 39 जो है क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाएगा बी। तो ग्रेप वाइन जो है वो साइमन का था, ठीक है, एंड ग्रेप वाइन जो था वो साइमन का था। साइबरनेटिक्स नॉइज़ जो थी वो सेनन वीवर। साइबरनेटिक्स जो था वो वीनर का था, एंड गैंग प्लिंक तो पता ही है फ्योल का। विच इज़ द फॉलोइंग नेटवर्क कम्युनिकेशन आल्सो एंड द व्हील नेटवर्क। तो 40 का आंसर है बी, दैट इज़ द स्टार नेटवर्क। नाउ 41 जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें आंसर सी है। सी का मतलब है कि साइंस ऑफ मॉडलिंग तो एडजियोने का नहीं था, ऑप्टिमल मॉडल रोर का था, बिहेवियरल अल्टरनेटिव मॉडल साइमन का, तो मिक्स स्कैनिंग मॉडल एडजियोने का है, ड्रकर का है मॉडलिंग थ्रो। H. Simon is the first give to the meaningful analysis of the decision making। तो 42 क्वेश्चन नंबर 42 में है डी। ए इज़ फॉल्स है एंड आर इज़ ट्रू है। साइमन ने कोई मीनिंगफुल नहीं दिया था, ठीक है ना। विच इज़ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? इन द 43 क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 150 मोर ऑफ द गवर्नर, जो कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नर जो है 44, दैट इज़ बी। इशूइंग द ऑर्डिनेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द गवर्नेंस है। एजेंडा ऑफ द चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस जो थी 45 के आंसर आ जाएगा डी। दैट वाज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस होती है। विच इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी आर करेक्ट। तो 46 का आंसर आ जाएगा सी, दैट इज़ 2 एंड 3। दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड लॉर्ड वेलेस्ली इन 1799 में क्रिएट हुआ था, 1789 में नहीं हुआ था, कॉर्नवालिस का भी नहीं था। द चीफ मिनिस्टर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द मिनिस्टर। तो 47 का आंसर आ जाएगा ए। 48 का आंसर आ जाएगा सेटलमेंट ऑफ द क्रिमिनल केसेस नॉट ए फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो 48 का आ जाएगा डी। 49 का भी डी आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान 1946 में अडॉप्ट किया गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्रेटरी डायरेक्टेड आर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ द फंक्शन। तो 50 का आंसर आ जाएगा सी, दैट इज़ आर इज़ फॉल्स आ जाएगा। देयर इज़ नॉट डिमार्केशन ऑफ द सर्विसेज, विच इज़ फॉलोइंग इज करेक्ट। 51 का आंसर आ जाएगा सी, 1, 3 एंड 5। अशोक मेहता कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट 77 में, दैट इज़ इनकरेक्ट। सिंघवी 87 में, जीवी राव 86 में, बलवंत राय 57। विच इज़ फॉलोइंग वॉलेंटरी प्रोविजन फॉर द 73rd। 52 का आंसर आ जाएगा सी, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इसमें नहीं आया था।
सेटलिंग ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इसमें नहीं आया था। वॉलंटरी की बात की गई है तो रिजर्वेशन था, प्रिपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी था, पंचायत रिगार्ड टैक्सेस भी था। नाउ 53 का आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द बी। बी है खन्ना, दैट इज स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड लॉ अर्बन बॉडीज़। 54 का आंसर आ जाएगा बी। बी का मतलब है कि रूरल अर्बन रिलेशनशिप की बात 63 में टैक्सेशन की बात की गई थी, दैट वाज इन 53। कमीशन ऑन सर्विस ऑन म्यूनसिपल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी 65 में। नेशनल कमीशन अर्बनाइजेशन 85 में। द सिविल सर्विस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड ओरिजिन सच एज डाइकोटोमी इन इंडिया कैन बी ट्रेस इन मैकॉले कमिटी। तो 55 का आ जाएगा बी। एंड 56 का आंसर आ जाएगा बी। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो था ये गुड़गांव में था। वेंकटेया इंस्टीट्यूट जो था दैट वाज इन पूडा। एंड स्मॉल इंडस्ट्री हैदराबाद में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर लोकल गवर्नमेंट जो था वो बॉम्बे में था। यूपीएससी फंक्शन इज नॉट डिसाइड बट द एडवाइस। यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो 57 का आंसर आ जाएगा बी। विच इज़ द फॉलोइंग कंसीडर्ड द क्वेश्चन प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीट, तो 58 का आंसर आ जाएगा सी। मैक्सवेल कमेटी, छांगला, एडी कोरवाला एंड पीच एपल भी नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आएगा। विच इज़ फॉलोइंग इनकरेक्ट है। 59 का आ जाएगा बी। कोठारी कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट 1975 इन इंडिया, द बेसिक रिक्रूटमेंट पॉलिसी 1979। सतीश चंद्रा कमेटी अपॉइंटेड 88, दैट्स नॉट ट्रू। कोठारी 74 में नहीं थी। नाउ 60 के अंदर आ जाएगा सी 1 and 3। द नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन 1959। द सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज वॉज रीनेम्ड सरदार वल्लभ भाई। नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रीनेम्ड लाल बहादुर शास्त्री, दैट्स नॉट ट्रू। Central Police Training College was renamed National Police Academy on the recommendation of the Gore Committee, that's not true. Which is the Central Administrative Tribunal, तो 61 के अंदर आ जाएगा आंसर नंबर सी। सी का मतलब 3 और 4। इट वॉज 85 में आया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड इट वॉज टेबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 312 ए में नहीं आया था एंड इट्स प्रेसिडेंट ऑर्डर से भी नहीं आया था। विच इज़ फॉलोइंग इज ट्रू, तो 62 में आ जाएगा ए 1, 3, 4 and 5। मोरिवेंट कमेटी वॉज फर्स्ट ऑन द एडवोकेट सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट, ये सही नहीं है। एस्टीमेट कमेटी में तो ऑडिट होता है। सेपरेशन ऑफ अकाउंट ऑडिट लेड टू द डिपार्टमेंटलाइजेशन। यूनियन टेरिटरी हैव द सेपरेट अकाउंट। Now Ministry Chief Accounting. Which is the following audit discretionary and not obligatory of the cake? 63 is D. Audit of the proprietary is not that. According to the human relation theory, an organization consists of which of following element? 64 का आ जाएगा C 1, 2, 3, 4। Informal group, individual, formal structure, inter group relation। 65 का आंसर आ जाएगा that will be the C। मॉरिस कुक जो था इसने बनाया था अप्लाइड साइंटिफिक मैनेजमेंट। रॉबर्ट हॉक्जी जो था इसने स्टेटेड द बेसिक आइडिया ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। हैमिल्टन जो था इसने किया था दैट वाज द कॉल्ड द सिस्टम एफिकेसी सिस्टम। एंड द लॉर्ड ब्रांडीज जो था इसने किया था दैट वाज कॉइंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म। ओके 66 का आंसर जो आएगा दैट विल बी द डी। डी का मतलब डिज़ायरेबल। स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट इज desirable physical condition of the work, personal non-material opportunity for the distinction, the condition for communicating with the others, that's not true, ideal beneficiary and the material reward, which is following are associated with the Chris Argyris, तो 67 का आंसर आ जाएगा सी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनलाइज प्रोसेस एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग। स्ट्रेटेजिक फैक्टर डिसीजन मेकिंग इसमें नहीं आएगा। विच इज फॉलोइंग इज द पेयर्स द करेक्टली इमेज्ड। 68 का आंसर आ जाएगा दैट विल बी द ए। मोरेनो ने स्टडी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दिया था। असर्शन, मार्च एंड साइमन से दैट वेबरियन ब्यूरोक्रेसी वुड नॉट अटेन द मैक्सिमम एफिकेसी अकॉर्डिंग टू द वेबर, स्टिल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू द नेग्लेक्टेड ऑफ द ह्यूमन डायमेंशन। 69 का आंसर आ जाएगा दैट विल बी द 69 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी जो है 70 का आ जाएगा बी, दैट इज हेनरी फेयोल। 71 का आंसर आ जाएगा डी। सिनर्जिज्म का मतलब होता है सिमिलरिटी। एंट्रोपी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। होम्योस्टेटिक का मतलब होता है सिमिलरिटी। होलिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिमिलरिटी। ठीक है, 71 का आंसर आ जाएगा डी। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, दैट इज कोहेरेंस। ओके, एंड होमोस्टैटिक का मतलब स्टेडी स्टेट। होम्यो और एंट्रोपी का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। विच इज फॉलोइंग इज द एसोसिएट एम्पी फॉलेट, तो 72 का आंसर आ जाएगा दैट विल बी द ए। एडमिशन चेंज आएगा, दैन डिलीगेशन नहीं आएगा। कंसल्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, डिसपर्सनलाइजेशन ऑर्डर है, लो ऑफ सिचुएशन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, दैट विल बी द मेंटल रिवॉल्यूशन।
इज मीन्स, विच इज़ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो 74 का आ जाएगा डी, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नॉट पर्सपेक्टिव। 75 का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज विल बी द बी। बी का मतलब आ जाएगा एन इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बिकम ए टर्मिनल वैल्यू, दैट वाज द पीटर। ऑफिशियल मेक वर्क टू ईच अदर, दैट वाज द पार्किंसन। रिजिड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी करेक्ट। सी का आंसर आ जाएगा 1, दैट इज एम कोजियर। मैनेजर राइज टू देयर लेवल इन कॉम्पिटेंसी, दैट वाज द पीटर। Peter Drucker criticized human relation for not being aware, and he said that they neglected the nature of the work and instead focus on the interpersonal relation. So 76 का आंसर आ जाएगा A, which is the following method entry to the higher civil service during the British period. 77 का आ जाएगा D, promotion from the provided civil service appointment from the bar by open competition and the separate competition examination, which is the following British Indian independence. 78 का आंसर आ जाएगा D, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। फिर बाइकैमरलिज्म, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर स्टेट एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एनोनिमिटी ऑफ द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 79 का आंसर आ जाएगा सी। 79 का आंसर सी। 38 द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। तो 80 का आंसर आ जाएगा सी 1 and 3। President can give directions and the all money bill other than financial bill state can be preserved to the consideration of the president. If any question arise as to the age of the judge of the High Court, the question shall be decided by 81 का आंसर आ जाएगा डी, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। विच इज़ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली गवर्न बाय द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो 82 का आंसर आ जाएगा बी। बी का मतलब 1, 3 and 5। 75, 78, 74 विच इज़ फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 83 का आंसर आ जाएगा ए। 1 and 4 it enjoys the status of under the government of India allocation bill and it has affected the status of position of cabinet secretariat. It is responsible for PM functioning, that's not true. It was strengthened for the first time during the period of Indira Gandhi, that's not time. And the PM for the head of cabinet, that's not true. Which is the following are the audit of the cake from the audit make। 84 का आंसर आ जाएगा दैट विल द डी, audit of propriety. The Swedish ombudsman was created. He supervised the function of the civil, military and judicial. 85 का आंसर आ जाएगा D, that is R is true but A is not true, not created by the Sweden. So 85 का आंसर क्या आ जाएगा D, which is following tenure system, central secretariat staffing। 86 का आंसर आ जाएगा D, organization procedure for the committee, report of the government of India secretariat procedure committee, report of the Bengal administration and report on government of secretariat। which is the true about the cabinet secretariat। 87 का आंसर आ जाएगा C, he is the no sense the investigator, he role also the advisor to the conscience keeper and his office cabinet secretariat created Eddie Gorwala, that's not true। he took place of the secretary to the governor general personnel, that's not true about the cabinet। which who is the economic cabinet, not merely the union but also the states। 88 का आंसर आ जाएगा डी। डी का मतलब आ जाएगा अशोक चंदा ने ऐसा कहा था। 89 का आंसर आ जाएगा सी। सी का मतलब है कि अमॉन्ग द एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्लानिंग एनडीसी इज श्योरली इनकरेक्ट क्लियर फ्रॉम द कंपोजिशन। ए का आंसर आ जाएगा 5। पटेल ने कहा था एनडीसी वॉज स्टेब्लिश सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी बॉडी ऑन द प्लानिंग, ये कहा था ब्रेचर ने। द एनडीसी इन्फ्रिंज अपॉन द फंक्शन विच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन टू द अदर बॉडी, इसे अशोक चंदा ने कहा था। द एनडीसी इज बिकम अप्रोक्सीमेटली सुपर कैबिनेट, ये कहा था संथानम ने। 90 का आंसर आ जाएगा ए। ए का मतलब है 2 सी का 2 था यहाँ पे। द एनडीसी इन्फ्रिंज अपॉन द फंक्शन, ये एपी जैन ने कहा था, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री इज एडवाइजरी टू द कोऑर्डिनेशन बॉडी एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर ऑर्डर टू द लायर स्टेट। विच इज़ फॉलोइंग स्टैट्यूटरी बॉडी बतानी है हमें। 95 में आ जाएगा डी। 2, 3 and 4 स्टैट्यूटरी है। सेंट्रल वाटर पावर कमीशन स्टैट्यूटरी नहीं है एंड द गैस कमीशन भी नहीं है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग फंक्शन, प्लानिंग कमीशन के फंक्शन बताने हैं। 92 का आ जाएगा सी 1, 2 and 4। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग डेवलपमेंट, इसमें नहीं आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फाइनेंस कमीशन डिफर फ्रॉम द प्लानिंग। 93 का आंसर आ जाएगा बी 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 and 5 टेन्योर फंक्शन लीगल कंपोजिशन फॉरम ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा। द नीड फॉर ए सेपरेट पार्लियामेंट्री कमेटी। 94 का आंसर आ जाएगा सी, लंका सुंदरम ने सेपरेट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज विच इज़ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द रिफॉर्म कमीशन इन द पब्लिक अंडरटेकिंग। 95 का आंसर आ जाएगा सी 1, 2 and 3। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी शुड बी रन एज ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओनली, इसमें नहीं आएगा। विच इज़ फॉलोइंग आर द कॉर्पोरेशंस
तो 96 में आंसर आ जाएगा A 1, 2 एंड 4। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसमें नहीं आएगा पब्लिक अंडरटेकिंग में। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑयल नेचुरल गैस। थ्रू जापान एडोप्शन ऑफ द अमेरिकन प्रिंसिपल रिव्यू एंड दिस वाज द जापानीज सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 97 का आ जाएगा ए। देन 98 का आंसर आ जाएगा बी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट जो था 53 में, टेन्योर जो बनाया गया था वो 54 में, इलेक्शन जो था वो था 55 में, इम्पीचमेंट जो था वो था दैट वाज इन द 361 में। विच इज़ फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। 99 का आ जाएगा बी 1 एंड 4। The line staff agency is direct to the achievement goal. The staff agency is a variety of the activity. That's not true. The line agency is advisory. That's not true. Line agency is direct contact with the people on while staff is not. Line agency advisory नहीं होती है. Which is following pair is not correctly matched. तो 100 का आ जाएगा D. Home Ministry staff agency नहीं है. Which is following true about supervision. 101 का आ जाएगा C. 1, 2 एंड 5 इंस्पेक्शन करना कंसल्टेटिव रोल तो होता ही है इसका, लाइन एज वेल एज फंक्शन स्टाफ के भी होते हैं। इस पोस्ट फैक्टोर नहीं करता है। एंड 1, 2 एंड 5 है तो इट नेचर एक्सटेंड डज नॉट डिफर फ्रॉम द वन लेवल, ये भी सही नहीं है। 102 का आंसर आ जाएगा दैट इज द बी। बी का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड जो था इसको हमने दिया था। द कॉन्सेप्ट और रिक्वायर दैट द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन ओनली वन लीडर, ठीक है। एंड हायरार्की का मतलब होता है, सी का मतलब हो जाएगा 2, रेस्पॉन्सिबिलिटी रीचिंग टू द टॉप टू द बॉटम स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड 102 का आंसर जो था वो बी था, तो मतलब बी का 1 था। बी मतलब अथॉरिटी, इट्स ए कैरेक्टर कम्युनिकेट पर्चू विच इज एक्सेप्टेड कंट्रीब्यूटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड। ओके, नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सिग्निफाई ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डिलीगेशन इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो 103 का आंसर भी बी आ जाएगा। एंड 104 का आंसर भी बी ही है। बी का मतलब 1 एंड 2। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडियन ऑडिट जो था वो 1983 में नहीं आया था, और इंडियन इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम भी 35 में नहीं आया था। ऑडिट ब्रिटेन में इवॉल्व हुआ था, और यूएसए में 1921 में बजट अकाउंट एक्ट पास हुआ था। बजट इज स्टेटमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट इज फैसिलिटेट लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। 105 का आंसर भी बी आएगा। 106 में आंसर आ जाएगा डी। इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजट जो आया था ये 68 में, सेपरेशन जो हुआ था वो हुआ था 76 में। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम ऑफ डेलीगेशन जो हुई थी वो 58 में। इंट्रोडक्शन स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर 76 में। नाउ 107 में पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्रिएशन ऑफ द फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज ऑपरेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो 107 का आंसर आ जाएगा डी। डी का मतलब है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ पब्लिक एडमिन डिमिनिश्ड बाय द क्रिएशन ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड, दैट्स नॉट ट्रू। 108 का आंसर आ जाएगा सी। सी का मतलब है 2 एंड 4। चार्ज आइटम नॉट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, एक्सेस ग्रांट सबमिटेड डायरेक्टली टू द लोकसभा फॉर अप्रूवल। वोट ऑन क्रेडिट ब्लैंक चेक होता है क्या? एंड इनकरेक्ट हाँ होता है। एंड वोट ऑन अकाउंट टू अलाउ द आइटम फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डिस्कशन ऑफ द बजट, ठीक है। नाउ ये भी हो गया। 109 का आंसर क्या आ जाएगा? 109 का आंसर आ जाएगा ए 1, 2 एंड 3। इमोल्यूशन एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आते, यूपीएससी के आते हैं। एंड डेप्ट विच इज़ गवर्नमेंट लायबल एंड सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 110 का आंसर आ जाएगा बी 1, 2, 3, 4। टू एग्जामिन द केक रिपोर्ट, टू एग्जामिन द केक रिपोर्ट स्टेटमेंट अकाउंट स्टेट कॉपरेटिंग अकाउंट ऑफ द ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी एंड द service during the financial year. The device of adjournment motion is not the Rajya Sabha, and adjournment motion does not result removing the government of office. 111 का बी आ जाएगा। Now over the period of year public account committee has entirely fulfilled the expectation, fulfill कर रही है। तो 112 का आ जाएगा बी, दैट इज अशोक चंदा ने ऐसा कहा था पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए। विच इज़ द फॉलोइंग मीन द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो 113 का आ जाएगा सी 1, 2, 3, 4। पॉलिटिकल इंटरनल डेलीगेटेड प्लानिंग कमीशन सारी। ऑर्डिनेंस इंस्ट्रूमेंट टू द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एंड ऑर्डिनेंस इक्वल टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होता है क्या? 114 का बी नहीं होता है, एक्सप्लेन नहीं करा है। नो मैन इज पनिशेबल लॉफुली मेड टू सफ़र द बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट द डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ द लॉ। तो 115 में आ जाएगा डी, दैट इज रूल ऑफ लॉ। विच इज़ द फॉलोइंग जुडिशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। 116 का आ जाएगा बी 2, 3 एंड 4। सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा जुडिशियल कंट्रोल में, इंजक्शन आएगा, जुडिशियल रिव्यू आएगा। विच इज़ फॉलोइंग लोकपाल बिल एंड द प्राइम मिनिस्टर देयर जुरिस्डिक्शन। 117 का आ जाएगा सी।
सी का मतलब हो जाएगा 3 and 5